Hello students, welcome back to my class Birds of Wisdom. So in this session today, I am going to explain you the correct usage of article the or the, that is definite article. In my last session, I explained you the correct usage of indefinite article and the correct pronunciation of both these articles. What should be the correct pronunciation? A or a, an or an, the or the. If you have not visited that video, please go through the link given above and learn the topic properly. In this video, I am going to explain you the correct usage of article the or the. There are innumerable rules of article the or the. I have taken some common but the most important rules. If you know all the usage of article the, still I will request you to visit the video. Maybe you may come across with some of the new rules. And promise me, if you come across with any kind of new rule, you will tell me in the comment box below. You will tell me the number which rule was exactly new for you. Okay, so let's move to the screen. See, the topic comes under three parts. The correct usage of article, that takes indefinite article and definite articles, then repetition of article, and then omission of articles. Okay, so the article the or the is always used with singular and plural noun both. Means indefinite article, as we know, is used only before the singular nouns, but the definite article the can be used before singular and plural noun both. Okay, for example, I visited the Red Fort yesterday. The mangoes I bought today were really delicious. तो हम देखते हैं the Red Fort. Red Fort is a singular noun while mangoes it is a plural noun. ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि the का यूसेज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ भी हो सकता है और प्लूरल नाउन के साथ भी हो सकता है. ठीक है, देन the is usually used with common noun, but exceptionally in some cases it is used with proper noun also. Okay, यानी जो the होता है नॉर्मली कॉमन नाउन के साथ ही यूज होता है, लेकिन कभी कभी प्रॉपर नाउन. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. ओके, तो नॉर्मली प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, वहाँ पर कभी कभी प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल द का यूज हो जाता है. वो किस तरह से होता है हम पढ़ेंगे आगे जब हम रूल्स वन बाय वन कवर करेंगे, तो ये टॉपिक, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. सो रूल नंबर 1, पॉइंटिंग आउट द नाउन्स ऑलरेडी रेफर्ड टू. यानी जब भी हम उन नाउन्स के बारे में हम बात करते हैं जिनके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, या थोड़ी बहुत ही सही हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस नाउन के बारे में, तो ऐसी कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं नाउन से पहले. See these two examples. I am feeling boredom. I need a book to read. I want the book you are reading within an hour. Hope you will complete it soon. So in the first sentence, when I am saying I need a book, तो कोई भी बुक चलेगी मुझे पढ़ने के लिए, बस ये कोई बुक चाहिए तो मुझे कोई भी बुक चाहिए. But when I am saying I want the book you are reading, okay, that means वो बुक जो कि तुम्हारे हाथ में है, जो तुम पढ़ रहे हो. ठीक है, यानी उस बुक के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, वो नोन बुक है हमारे लिए. ठीक है, तो उस ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे? उस नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे. आई वॉन्ट द बुक यू आर रीडिंग विद इन एन आवर, होप यू विल कंप्लीट इट सून. I met a boy in the market today who was asking for you. आज
मैं मार्केट में मिली एक लड़के से जो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, यानी द बॉय इज अननोन टू मी एक्चुअली, ओके, दैट इज एनी न्यू बॉय, दैट इज एन अननोन बॉय whom I am talking about first time to the third person, okay. तो वो पर्सन जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, फर्स्ट टाइम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन जब वो पर्सन हमारे लिए नोन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो आई मेट द बॉय टुडे हु हेल्प us during our Nainital journey. Okay, so the boy who helped us during Nainital journey. Okay, तो नैनीताल जर्नी के टाइम पर कोई एक हमको लड़का मिला था जिसने हमारी हेल्प की थी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम द का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम उस बॉय को पहले से ही जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, बिफोर द नेम्स ऑफ द यूनिवर्सल बॉडीज एंड यूनिक थिंग्स, before the names of some celestial bodies, we always use article the. The sun rises in the east, the Mars is not very far from us now, the stars are celebrating in the dark night tonight. So we can notice that we are using article the before all these universal bodies. Then with some modern unique things, we can notice nowadays many of the new technical words are taking places and we come across with these new words, and these words are actually, most of the words are very technological words, okay. So these words are also unique words, okay, and unique things also. So before these unique words we always use article the. The internet, the crowd fund, the entertainment, okay. Thousands of students are having their online classes through the internet today. The crowdfunding has really played a great role during this pandemic, okay. Next one, with the government or government bodies. See, with government और government bodies के साथ जो आर्टिकल होता है वो दो कंडीशन में यूज होता है, ठीक है। कैसे? when referring to them as an institution and when referring to their existence or characteristics, okay. यानी जब भी ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, द आर्मी, द पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, ओके, एयरफोर्स, तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इनको जब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री इज ट्राइंग हार्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ COVID-19. The police are performing their duties perfectly well. The Navy sailed to the north for the next destination. I have served in the army for 4 years. The fire department arrived at the correct time. Here in these examples you can notice example number 2. With police I have used plural auxiliary verb and their possessive case, plural possessive case, okay, because police is always taken as plural noun, not a singular noun, okay. So with army, with police, we always use plural auxiliary verb and plural possessive case. You must always remember, okay. Okay, so with government bodies when referring to their existence or characteristics, तो अब उन्हीं गवर्नमेंट बॉडीज़ को कि जब हम उनकी क्वालिटीज़ दिखाते हैं या फिर कहना चाहिए उनके अस्तित्व के बारे में बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हम आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं उनसे पहले, ओके। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, ए वीक आर्मी कैन बी द बेसिक रीज़न ऑफ द डिफीट ऑफ एनी कंट्री, ओके। Then before all the geographical areas and bodies, यानी जितने भी हमारे geographical places होते हैं, जितने भी हमारी geographical bodies होती हैं, places होते हैं, उनके पहले हमेशा article द का यूज़ होता है। Mountain ranges,
जिसमें कि फर्स्ट आता है हमारा, जितने भी हमारे माउंटेन रेंजेस होते हैं उनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होता है। द हिमालयास, दी एल्प्स। लेकिन हमेशा हमें ध्यान रखना है बात कि उनकी जो पीक्स होती हैं उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। यानी माउंटेन रेंजेस से पहले तो आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, लेकिन उनकी पीक से आगे कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट, we can never use the Mount Everest. We will speak Mount Everest or Mount Olympus, Mount Kanchenjunga. Okay. Then next one. Before the names of rivers, seas, oceans and deserts. इनके पहले भी हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द थेम्स। तो नदी के नाम के आगे सागर, महासागर, डेजर्ट, इन सब के आगे हमेशा द का यूज होता है। द ताज इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। द आर्कटिक ओशन टचेस द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। द गोबी डेजर्ट इज कॉल्ड द बीस्ट ऑफ द डेजर्ट। Then, before the names of some states and countries when they have plural form or when different entities are grouped together. Now this is the most important rule to learn. Have attention. Normally हम कभी भी किसी भी सिटी के नाम के आगे, स्टेट के नाम के आगे या फिर किसी कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन वही स्टेट्स और वही कंट्रीज जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटिटीज़ को एक साथ बांधे हो, एक ग्रुप में बंधे हुए हों, तो या फिर वो जो नाम है वो प्लूरल फॉर्म में हो, तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। द पंजाब, ओके, इट इज़ अ प्लेस ऑफ 5 रिवर्स, जहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं। तो इस तरीके से जब बहुत सारी एंटिटीज़ को मिला करके एक प्लेस बनाया जाता है या ऑलरेडी होता है वो प्लेस डिफरेंट यूनाइटेड एंटिटीज़ का, तो उनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होता है। द डक्कन। नेक्स्ट वन, बिफोर द नेम्स ऑफ ऑल द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, the Red Fort, the Statue of Liberty, the Taj Mahal, the Wall of China. The next one, before the names of all the historical events, जितने भी हमारे historical events होते हैं उनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। The First World War, the War of Waterloo, the Battle of France, the Independence Day और the French Revolution. बिफोर द नेम्स ऑफ ऑल द रिलीजियस बुक्स, जितने भी हमारे रिलीजियस बुक्स होते हैं, यानी कि जो कॉमन बुक होती हैं उनके आगे नहीं, जितने भी हमारे रिलीजियस बुक्स के नाम होते हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। ठीक है। द भगवद गीता, द कुरान शरीफ, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, द अवेस्टा, द त्रिपिटका। ओके, बट हैव अटेंशन, we must never use article the before the names of religious books if before the names we are having the writer's name. Okay, Valmiki's Ramayana, we will not say Valmiki's the Ramayana, we will say Valmiki's Ramayana, Vyas Mahabharata. Okay, तो रिलीजियस बुक्स के पहले तो नाम आएगा, लेकिन अगर उनके राइटर्स के नाम आ जाते हैं तो ऐसे टाइम में आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। देन नेक्स्ट वन, बिफोर द नेम्स ऑफ ऑल द डायरेक्शन बट इन वन कंडीशन, ऑन द कंडीशन इफ यू हैव प्रपोजिशन बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो ये जो रूल है इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। Most of the students say that we always use article the before all the names of directions. Okay, before the names of directions. लेकिन before the names of direction के पहले आर्टिकल द का हमेशा यूज़ नहीं होता है। अगर डायरेक्शन से पहले किसी भी preposition का यूज़ हो गया है तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर
उसी नाम से पहले यानी उस डायरेक्शन से पहले कोई भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं हुआ है, तो ऐसे टाइम में हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट. वी कैन नोटिस प्रपोजिशन इन बिफोर द डायरेक्शन. ओके, the army marched towards the southeast. Okay, towards is a preposition. But see the next example. The army marched southeast. हमने देखा कि वर्ब के बाद कोई भी preposition का यूज नहीं हुआ है ना, यानी कि डायरेक्शन से पहले कोई भी preposition का यूज नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हम द का यूज नहीं करेंगे. क्लियर? Then before the names of all the newspaper, we always use article the. The Times of India, the Dainik Jagran, the Hindustan Times. Next one. Be attentive of this rule. When we take singular common noun as a whole class. Okay. Normally कॉमन नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है. किसी कंडीशन में होता है, किसी कंडीशन में नहीं होता है. For example, if I am saying I have a dog, okay, I have a dog, तो ऐसे कंडीशन में मैंने indefinite आर्टिकल का यूज़ हुआ क्योंकि मैं किसी भी एक डॉग की बात कर रही हूँ. ओके, बट इफ़ आई एम सेइंग द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, यानी वही कॉमन नाउन, वही सिंगुलर कॉमन नाउन, जब मैंने उसके बारे में कुछ इस तरह से बात की या उसकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक बताई जो कि उसकी पूरी क्लास को, उसकी होल क्लास को इंडिकेट करती है, तो ऐसी कंडीशन में उस कॉमन नाउन से पहले हम हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करेंगे. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट माई डॉग इज़ फेथफुल एंड योर डॉग इज़ अ डिसीवर. इट इज़ इम्पॉसिबल. ओके, तो हम एग्जैक्टली जब किसी भी एनिमल के बारे में इस तरह से कोई बात कर रहे हैं, उसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे हैं, तो एग्जैक्टली वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरी की पूरी उसकी क्लास को इंडिकेट करती है. द काउ लिव्स ऑन ग्रास. द पिकॉक dances gracefully. ओके, ठीक इसी तरह से सरनेम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं in the condition if the surname is telling something about the whole class. Okay, yani for example if I say, ask from anybody, are you Sharma, the person will answer me, yes I am Sharma. He will not say I am the Sharma. Okay, but when I say the Sharmas are intelligent persons, okay, तो ऐसी कंडीशन में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी शर्मा लोग हैं वो सभी लोग इंटेलिजेंट होते हैं. ठीक है? The Vermas are often goldsmiths. तो वर्मा लोग जो होते हैं वो अक्सर गोल्डस्मिथ होते हैं. ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी हम किसी भी सरनेम से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब उस पूरी की पूरी क्लास की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बता रहे हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पूरी की पूरी क्लास को इंडिकेट करती है. क्लियर? Then sometimes with proper noun on the condition when proper nouns. Now see, in the beginning I told you with proper noun also there are some conditions when we use article the. With this is condition, there are actually 3 conditions. Okay, this is condition number 1. When proper noun is used as a title. जब भी हम प्रॉपर नाउन को एज अ टाइटल यूज़ करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल द को यूज़ करते हैं. द अलेक्जेंडर द ग्रेट. ओके, नाउ सी अलेक्जेंडर, अशोका, अकबर, ये हमारे सारे प्रॉपर नाउन हैं. कॉमनली हम इनसे पहले द का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एज अ टाइटल इनका यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे. अलेक्जेंडर द ग्रेट, the great Ashoka, the great Akbar. Okay, second one, when proper noun takes plural form. Now as we know, proper noun is always a singular noun because it is the name of any person, place or thing. Okay, तो वो कभी plural नहीं हो सकता है. लेकिन
फिर भी कभी कभी हम उसको जब प्लूरल के रूप में बात करें, सी दिस एग्जाम्पल, हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ द एलेक्जेंडर्स, द नेपोलियंस, द हिटलर्स, बट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एज वेल। ओके, तो यहाँ पर एग्जैक्टली हम अलेक्जेंडर या नेपोलियन या हिटलर की बात नहीं कर रहे हैं, उनके जैसे लोगों की बात कर रहे हैं। ओके, इसी वजह से हमने इन प्रॉपर नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में शो किया है। तो जब भी प्रॉपर नाउन प्लूरल फॉर्म में शो होता है तो ऐसे कंडीशन में हमेशा उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, when a proper noun is talked as a common noun, जब प्रॉपर नाउन को हम ऐसे बात करें जैसे कि वो कॉमन नाउन हो। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सो हेयर एक्चुअली शेक्सपियर इज अ प्रॉपर नाउन, बट वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट शेक्सपियर एज अ कॉमन नाउन। ओके, कॉमन नाउन की तरह से हम बोल रहे हैं, यानी कालिदास के अंदर कैसी क्वालिटीज आ गई, यहाँ पर शेक्सपियर की क्वालिटीज आ गई हैं। ओके, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। माधुरी दीक्षित इज कॉल्ड एज द मधुबाला ऑफ बॉलीवुड। कश्मीर इज कॉल्ड एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ओके, when the adjective is talked as if a noun of multitude. Example, the rich should help the poor. Now see, rich is an adjective. Okay, तो जो rich word है इसके साथ यदि कोई noun आ जाता है, for example, he is a rich boy. Okay, तो ऐसी कंडीशन में हमने आर्टिकल का यूज किया। लेकिन जब भी एडजेक्टिव के साथ कोई भी नाउन नहीं आता है तो वो अपने आप में नाउन ऑफ क्लास बन जाते हैं। ठीक है, तो उस क्लास से पहले हम इस क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द रिच शुड हेल्प द पुअर। अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो ये जो एडजेक्टिव है जब उसके साथ द का यूज हुआ तो अपने आप में ये क्लास बन गया। ठीक है, इस एडजेक्टिव के साथ कोई भी नाउन नहीं है तो, और उसके साथ पहले हमने अगर द का यूज कर लिया तो ये अपने आप में एक क्लास बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, द ब्रेव मस्ट ऑलवेज प्रोटेक्ट द वीक, द स्टूडियस मस्ट ऑलवेज हेल्प द स्लो लर्नर। Then the next one, before the superlative degrees, we always use article the bravest, the richest, the cutest. Okay, the rose is the loveliest flower. The rose is the loveliest in all the flowers. Ria is the most intelligent girl in the class. Next one, before double comparative degree. Now see, before single comparative degree we never use article the. For example, Rahul is braver than Mohan, Nisha is more intelligent than Neha. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो comparative degree है उससे पहले हमने the का यूज़ नहीं किया, लेकिन वही comparative degree किसी सेंटेंस में 2 बार आती है तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the more you eat, the more you will grow fat. जब भी किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री 2 बार यूज होती है तो उसका मीनिंग होता है जितना या उतना। ठीक है, the higher you move, the colder you will feel. जितना तुम ऊपर जाओगे उतना ही ठंड महसूस करोगे। The sooner you realize your mistakes, the sooner you will move to the path of success. Okay, so whenever you are having comparative degree twice in your sentence, you will always use article the. Then sometimes usage of the before the names of languages change the meaning. Now what happens, कई बार क्या होता है कि जो हमारे सब्जेक्ट नेम होते हैं या लैंग्वेज नेम होते हैं उनसे पहले नॉर्मली हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन उनसे पहले यदि आर्टिकल द का यूज़ हो जाता है
तो वो गलत नहीं होता है, वो एक्चुअली उनका मीनिंग चेंज हो जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, when we are saying English, that means to say we are talking about English subject. But when we are saying the English, we are talking about the inhabitants of that place. Then means we are talking about the inhabitants of England. Okay, यानी इंग्लैंड के रहने वाले लोग. The French can speak French perfectly. English has been an international language today, which is actually the mother tongue of the English. Then this one is the last one. After all and both, we always use article the. Normally हम देखते हैं कि जो nouns होते हैं उनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है, लेकिन all और both ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है. All the boys of this class are very naughty. Both the sisters are intelligent. So these are some rules of the usage of article the. Hope all the rules are clear to you. If there is any doubt, you can ask me in the comment box below. And if you have come across with any kind of new rule, please tell me, inform me the number of that rule which is new to you. Okay? And if you really understood the chapter, please don't forget to share with your dearest ones and who really need to learn. Okay? So this is for today. Meet you soon with my next video, in which I will explain you the omission of articles and repetition of articles. Till then, goodbye. Happy learning.